السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، آرگینک کیمسٹری بیسکس کے ساتھ آج لیکچر نمبر 7 کو ڈسکس کریں گے۔ لیکچر 7 میں ہم الکینز کا نومنکلیچر پڑھیں گے۔ تو چلیے جی تھوڑا سا الکینز کے بیسکس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ لفظ ہے الکینز، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے الکینز کو۔ الکینز کیا ہوتے ہیں؟ دوز آرگینک کمپاؤنڈز ان وچ there is at least one double bond between carbon atoms in chain، یعنی کاربن کے ایٹم کا جو چین ہوگا اس میں کم سے کم ایک جگہ جو ہے ڈبل بانڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک سے زیادہ ڈبل بانڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایک ڈبل بانڈ ہونا چاہیے، اور ان کا جنرل فارمولا ہے CnH2n، ٹھیک ہے۔ اب فارمولا کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں، ٹھیک ہے۔ فارمولا ہے ان کا CnH2n، ٹھیک ہے۔ فرض کرے آپ ایتھین بنانا چاہ رہے ہیں تو ایتھین بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ فارمولا لگائیں گے CnH2n، اور n یہاں پر کیا ہے؟ یہ نمبر آف کاربن ایٹم کو شو کرتا ہے، ٹھیک۔ تو ایتھین چونکہ دو کاربن کو کہتے ہیں اس لیے آپ n کی جگہ 2 لگائیں گے، اور پھر 2 کی جگہ 2، اس n کی جگہ دوبارہ آپ 2 لگائیں گے، پھر C2 اور 2 سے ملٹیپلائی ہوگا 4، تو ایتھین کا فارمولا ہوگا C2H4۔ سملرلی اگر آپ پروپین بنانا چاہتے ہیں تو پروپین بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے فارمولا لگائیں گے CnH2n، پروپین تیسرے کاربن کو کہتے ہیں تو n کی جگہ 3 آ جائے گا اور دوبارہ n کی جگہ 3 آ جائے گا، ٹھیک۔ تو C3H6 3 سے ملٹیپلائی ہوگا 6، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروپین کا فارمولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے جی، اور ان کے نام کے آخر میں کیا آئے گا؟ این، جیسے کہ ایتھین، پروپین، بیوٹین وغیرہ، ٹھیک۔ اب ہم اس کا نومنکلیچر ڈسکس کرتے ہیں۔ رولز فار نیمنگ الکینز: سلیکٹ دا لانگیسٹ چین آف کاربن ایٹمز وچ کنٹینز ڈبل بانڈ۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کاربن کا وہ لمبا چین آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جس میں ڈبل بانڈ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ فرض کریں یہاں پر ایک ڈبل بانڈ موجود ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پر، ٹھیک ہے، کاربن لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اگر آپ یوں نمبرنگ کریں 1 2 3 4 5 6 کاربن آئیں گے، 1 2 3 4 5 6 کاربن آئیں گے، 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ لانگیسٹ چین سلیکٹ کرنا ہے جس میں ڈبل بانڈ لازمی آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہوا لانگیسٹ چین، صحیح، جس میں ڈبل بانڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لانگیسٹ چین وتھ ڈبل بانڈ، صحیح۔ تو ایک تو یہ ہوا طریقہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں پر اگر فرض کرے ایسی کنڈیشن ہو جیسے کاربن 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 کاربن، ٹھیک، اور یہاں پر ڈبل بانڈ موجود ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے ڈبل بانڈ موجود ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کاربن، اب دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7، اگر آپ یوں جاتے ہیں تو 7 کاربن آئیں گے، 1 2 3 4 5 6 یوں جاتے ہیں تو 6 کاربن آئیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 7 کاربن کو سلیکٹ نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس پورشن کو سلیکٹ کرنا ہے جس میں ڈبل بانڈ موجود ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس پورشن کو سلیکٹ کرنا ہے جس میں ڈبل بانڈ ہو، جیسے یہاں پر بھی ڈبل بانڈ ہے، یہاں پر بھی، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اسٹارٹ دا نمبرنگ فرام دیٹ اینڈ وچ شوز نیئرسٹ ڈبل بانڈ۔ آپ نے نمبرنگ وہاں سے کرنی ہے جہاں سے ڈبل بانڈ قریب ہو، جیسے یہاں سے 1 2 پر ہے، یہاں سے 1 2 3 4 5 پر ہے، تو آپ یہاں سے شروع کریں گے 1 2 3 4 5 6 7، اور یہاں پر دیکھنا یہ 1 پر ہے ڈبل بانڈ، یہاں پر 2 پر ہے، تو اب یہاں سے کریں گے 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چیز رہ گئی نا، یہ والی، ٹھیک ہے،
ये अटैच ग्रुप काउंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, अटैच ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पर ये इसका अटैच ग्रुप काउंट होगा, ठीक। तो चलिए जी आगे चलते हैं। इफ टू चेन्स compete फॉर नियरेस्ट डबल बॉन्ड, अगर दो चेन डबल बॉन्ड के लिए compete कर रहे हो, फर्ज करें जैसे इस एग्जांपल के अंदर आप देख लें, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। इफ टू चेन्स compete, अगर दो चेन मुकाबला करे फॉर नियरेस्ट, ठीक है, फॉर नियरेस्ट डबल बॉन्ड, करीबी डबल बॉन्ड के लिए, यानी यहां से भी डबल बॉन्ड 1 पर है, यहां से डबल बॉन्ड 1 पर है, ठीक है। तो अगर दो चेन डबल बॉन्ड के लिए compete करे, फिर आप क्या करेंगे, देन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, फिर आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे विच कंटेन्स मोर डबल बॉन्ड, जहां से डबल बॉन्ड ज्यादा हो आप नंबरिंग वहां से क्या कर लें, स्टार्ट कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड दोनों तरफ से एक ही फासले पर हो और उसमें कोई कंपटीशन, यानी एक तरफ डबल बॉन्ड ज्यादा ना हो, जैसे ये देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ अब इधर से भी डबल बॉन्ड उसी कार्बन पर है, यहाँ से भी, और इस तरफ भी मजीद डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर भी। अब इस कंडीशन में आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। इस कंडीशन में आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। राइट द नंबर ऑफ कार्बन दैट हैज डबल बॉन्ड, ठीक है, आपने करना क्या है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा उसका नंबर भी लिखना है। फर्ज करें यहाँ डबल बॉन्ड है, आपने नंबरिंग की 1 2 3 4 5, अब 2 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो आपने 2 इसका नंबर लिखना होगा, ठीक है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 को हम पेंटा कहते हैं, और आपको पता है कि जब डबल बॉन्ड आ जाए तो लास्ट में इन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पेंटीन, सही। इसके बाद हम चलते हैं, इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन चेन, अगर किसी चेन के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो, जैसे यहाँ पर आप देखें यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, सही। देन नंबर ऑफ कार्बन विल बी रिटन ईच टाइम, फिर जिस जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उसका नंबर भी आपने हर दफा लिखना होगा। क्या मतलब है, 2 पर डबल बॉन्ड है 4 पर ना, तो आप इसका नंबर 2 दफा लिखेंगे 2 4, ठीक। फिर क्या करेंगे, फॉर 2 डबल बॉन्ड्स यूज डाई इन, फॉर 3 डबल बॉन्ड्स यूज ट्राइन, और 2 डबल बॉन्ड होंगे तो हम डाइन, और 3 होंगे ट्राइन, 4 होंगे तो टेट्राइन यूज करेंगे। जैसे फर्ज करें ये कितने 6 कार्बन है, तो पहले आप लिखेंगे हेक्सा और उसके बाद आप लिखेंगे डाईइन। अब इसमें ये ज़हन में रखना कि इस नाम को सिंपली हम लिख लेंगे हेक्सा पेंटा ब्यूटा, और उसके बाद डाईइन का लफ्ज शुद्ध लिख लेंगे, ठीक है। तो ये होगा 2 4 हेक्सा डाईइन, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 डबल बॉन्ड एक ही चेन के अंदर आ जाए मुसलसल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपने क्या करना है 1 2 3, यानी जिस जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा पहले उसका नंबर लिखेंगे, और उसके बाद चेन का नाम क्या होगा हेक्सा, और 3 दफा है तो ट्राई इन आ जाएगा, ठीक है। बेसिक नेम और स्टेम नेम एंड्स इन इन, नाम इन में एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। अब हम आते हैं नेम टू स्ट्रक्चर्स बनाने की तरफ, ठीक है, कि हमारे पास नेम होगा हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट करें पहला नेम हमने ड्रॉ करना है 2 पेंटीन, सही, और उसके बाद हमने ड्रॉ करना है 3 अमाइनो 1 ब्यूटीन, ये ड्रॉ करना है, और उसके बाद हमने ड्रॉ करना है फर्ज करे 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल और 1 हेक्सीन, इसको हमने ड्रॉ करना है। और उसके बाद 1 4 4 ट्राई ब्रोमो और 5 5 डाई मिथाइल,
2 ऑक्टीन, ठीक है, इसको हमने ड्रा करना है। इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। या इसी तरह देखिए जी 1 3 हेक्सा डाइईन ड्रा करना है, या इसी तरह बिल्कुल जो है 1 3 5 हेप्टा ट्राइईन ड्रा करना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो चलिए जी अब इनको हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। 2 पेंटीन, अब पेंटीन 2 कार्बन को कहते हैं, और ये कह रहा है सॉरी पेंटीन 5 कार्बन को कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 2 पेंटीन, यानी कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड होगा, कुल 5 कार्बन होंगे, ठीक है। बाकी आपने इसके वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है और साथ में हाइड्रोजन्स भी लगाने होते हैं, ठीक है। वो मैं नहीं लगा रहा होता, सिर्फ इसलिए कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और टाइम बच जाए, ठीक है। सेकेंडली आप आ जाए, ये है 3 अमाइनो 1 ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब है आपने 4 कार्बन ड्रा करने हैं और 3 अमाइनो 1 ब्यूटीन, ठीक है। यानी 1 पे डबल बॉन्ड होगा और 1 2 3 4 और 3 पर फिर अमाइनो ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे 3 अमीनो 1 ब्यूटीन, सही। फिर 3 3 डाइमिथाइल 1 हेक्सीन। हेक्सीन का मतलब है आपने पहले 6 कार्बन ड्रा करने हैं, उसके बाद 3 3 डाइमिथाइल, यानी कार्बन नंबर 3 पे 2 दफा मिथाइल होगा और 1 हेक्सीन कार्बन 1 पे, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड होगा क्योंकि 1 हेक्सीन है, और कार्बन 3 पर 2 मिथाइल होंगे, एक मिथाइल यहाँ पर लग जाएगा और एक मिथाइल यहाँ पर लग जाएगा, ठीक। फिर 1 4 4 ट्राइब्रोमो 5 5 डाइमिथाइल 2 ऑक्टीन। आपने पहले कुछ भी नहीं देखना, आपने सिंपली देखना है कि कौन सा चेन है। तो ऑक्टीन है, आप 8 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 2 ऑक्टीन है ना, यानी कार्बन 2 पर जो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 1 4 4 ट्राइब्रोमो, ठीक है। 1 पे जो है 4 दफा ब्रोमो, 3 दफा ब्रोमो होगा, ये 1 1 और 1, ठीक है। 1 1 1 ट्राइब्रोमो और 5 5 डाइमिथाइल, यानी 5 पे 2 दफा मिथाइल ग्रुप लगा होगा, ठीक है, डाइमिथाइल ऑक्टीन। और नेक्स्ट एग्जांपल है 1 3 हेक्सा डाइईन। तो हेक्सा का मतलब है आपने 6 कार्बन बनाने हैं, और इसके बाद कह रहे हैं 1 3 हेक्सा डाइईन, यानी 1 पर भी डबल बॉन्ड होगा, 3 पर भी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 1 3 हेक्सा डाइईन। और 1 3 5 हेप्टा ट्राइईन, ठीक है। तो हेप्टा का मतलब है कि आपने पहले 7 कार्बन ड्रा करने हैं, 2 3 4 5 6 7, फिर 1 पे 3 पे 5 पे 1 पे 3 पे और 5 पे, ठीक है। यानी 1 पे, फिर उसके बाद 3 पे और उसके बाद 5 पे 3 डबल बॉन्ड हो गए, 1 3 5 हेप्टाडाइईन। तो ये तरीका था इसका, ठीक है। अब मैं कुछ मिसालें आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो हम कर रहे थे नेम टू स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम कुछ करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं इसके स्ट्रक्चर टू नेम के, ठीक है। तो चलिए जी कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं स्ट्रक्चर टू नेम, सही। स्ट्रक्चर टू नेम के कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। तो देखिए जी, मैं पहले कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेता हूँ। ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH3, और उसके बाद CH डबल बॉन्ड, फिर दोबारा CH, उसके बाद CH2 और उसके बाद फिर CH2। एक मैंने बना लिया। और दूसरा स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH और उसके साथ क्लोरो लगा हुआ हो, फिर CH2, फिर CH2 और उसके बाद CH3, ठीक है। तीसरा एग्जांपल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है।
CH3, ठीक है, और CH इसके साथ लगा हुआ है C2H5, उसके बाद फिर है CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH3। उसके बाद दोबारा मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ, CH3, CH2 और उसके बाद CH, फिर इसको हम दो तरफ चेन को बढ़ाते हैं, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2, और यहाँ CH2, CH2, CH3, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। CH3, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर CH, और उसके बाद है फिर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद दोबारा CH, फिर उसके बाद CH2 और CH3, ठीक। तो आई थिंक काफ़ी एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब हम इसको जो है इनके नाम लिख लेते हैं। तो चलिए जी, पहला देखिए, आपने कार्बन गिनने हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वहां से जहां से अटैच डबल बॉन्ड करीब है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 कार्बन का नंबर लिखेंगे और उसके बाद 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड के साथ, तो इसको लिखेंगे पेंटीन, सही। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब हो, 1 2 3 4 5 6। अटैच ग्रुप को पहले लिखेंगे, 3 पर क्या है, क्लोरो, और उसके बाद 1 पर डबल बॉन्ड है और कुल कितने कार्बन है, 6 हैं, तो 1 एक्जीन, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आ जाएं जी, CH3 और अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, ठीक है। वैसे बाज़ाहिर इसकी नंबरिंग ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम यूं इसको अगर लिख ले, ठीक है, कि 5 मिथाइल 2 एक्जीन, 5 पे मिथाइल है और एक्जीन है 2 एक्जीन, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि अभी तक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं हुआ। कैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं हुआ अभी आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। आप देखना, ये जो C2H5 है ना, इसको पहले हम खोल लेंगे, ठीक है। कैसे खोलेंगे आप देखें जरा, इस एग्जांपल को मैं दोबारा लिख रहा हूं, CH2, CH डबल बॉन्ड, फिर CH, ठीक है, और उसके बाद CH3, और ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन है, ठीक है। ये असल में CH2 और CH3 है। पहले इसको खोल लें आप, ठीक है। तो इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, और उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये अटैच ग्रुप होगा, ठीक है। तो 5 पे मिथाइल लगा हुआ है, नाम लिखेंगे 5 मिथाइल, और उसके बाद कितने कार्बन का चेन है, 7 का, और कार्बन 2 पे, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो 2F18, ये इसका नाम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यूं जो है ज्यादा कार्बन आ रहे हैं तो नंबरिंग हम यूं ही ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और अब ये जो देखना यहाँ पर, ठीक है, ये कार्बन जो रह गए, ठीक है, इसको हम अब जोड़ देंगे, ठीक है। ये इथाइल ग्रुप है, अगर आप गौर करें इसमें 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको आपने वापस जोड़ देना है, तो इस स्ट्रक्चर को भी हम दोबारा ड्रा करेंगे, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड, CH, फिर उसके बाद CH2, उसके बाद ये कार्बन CH, फिर दोबारा CH2, फिर CH2 और CH3, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो जगह है इसको हम वापस जोड़ देंगे, ठीक है, C2H5 कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ, ये अटैच ग्रुप के तौर पे बच गया। और 4 पे है ना,
तो हम इसको लिखेंगे 4 इथाइल, और बाकी चेन हेप्टेन का है और कार्बन 1 पे इसका डबल बॉन्ड है, तो 1 एप्टीन। सही, ये हुआ। अब इसके बाद इसमें 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 4 और कुल कितने कार्बन है 7, तो सिंपली हेप्टा लिखेंगे, फिर उसके बाद डाई इन, ठीक है। और अगर इसी तरह चेन हो जिसमें मुसलसल 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो 1 2 3 4 आप इसको लिखेंगे 1 2 3, ब्यूटा 4 कार्बन है, ब्यूटा और 3 डबल बॉन्ड है, तो ट्राई इन। सही, इस तरह आपने इसको लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट के मुतालिक कमेंट देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।